Hello learners, welcome to our YouTube channel. Let's explore geography. Today we will start the second part of topographical map. This is our second class. In this class we will try to understand in detail about different features and different topics about topographical map. आज हम लोग topographical map के topic wise हम लोग discuss करेंगे step by step. The first class was about the basic concept about topographical map. If you have not watched still now, you can go to the description section and you can watch from there. Links will be provided. So I have decided to take topographical maps class in very small set of classes. छोटे छोटे क्लास में डिवाइड करके हम लोग इसे जानने की कोशिश करेंगे. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रिड रेफरेंस. ठीक है, ग्रिड रेफरेंस में मेनली वी विल डिस्कस अबाउट टुडे अबाउट 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस. So in your exam 2 type of grid reference will come, 4 figure and 6 figure. Okay, 4 figure and 6 figure. But now today we will discuss only about 4 figure grid reference, and next class we will discuss about 6 figure, because if we will discuss together this all concept it will be difficult for you to understand. So that's why I have decided to take small classes so that your concept will be clear in detail. ठीक है, तो देखो, mainly you have to know one thing more. Topographical map will contain 20 marks and map pointing will contain 10 marks. So total 30 marks. Your part 1 in your question paper, part 1 or part A, the first part, it will carry total 30 marks. Okay, and within this 30 marks topo map will carry 20 marks and map pointing will carry 10 marks. So it is the huge chance for all of you to get 30 out of 30. ये जो पार्ट है ना, यहाँ से 30 out of 30 मार्क्स निकालना बहुत ईजी है एंड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. सो आई थिंक दैट स्टूडेंट्स try to be concentrate here so that you can get full marks from this part. ठीक है, तो इसलिए तुम लोग का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बहुत अच्छे से इसको जानने की कोशिश करोगे. ठीक है, सो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड की हूँ आज. नंबर 1, दिस इज द आइडेंटिफाइंग फीचर्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिड रेफरेंस. ओके, इस पार्ट में क्या रहेगा? इस पार्ट में रहेगा यू विल बी गिवन द ग्रिड नंबर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द फीचर्स. 2 टाइप्स से क्वेश्चन आता है topographical map में. First one, you have to identifying feature by the help of the grid reference. This is the one type of question, and the second type of question is that you will be given the type of features. It will be physical or it will be man-made features, but you have to calculate or you have to give the grid reference here, 4 figure grid reference here. So फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन में कम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है. एक तो तुम्हें फिजिकल फीचर और मैनमेड फीचर दिया जाएगा, तुम्हें ग्रिड रेफरेंस को पॉइंट आउट करना है, और एक क्या होगा, ग्रिड रेफरेंस प्रोवाइडेड होगा एंड यू हैव टू, तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें वो फीचर क्या है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें ग्रिड रेफरेंस प्रोवाइडेड होगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द फीचर्स. जो फिजिकल और मैन मेड फीचर है उसका अलग हम लोग फिर से क्लास करेंगे, कैसे हम लोग फिजिकल फीचर्स को कैसे हम लोग मैन मेड फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. बट टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैप अबाउट फिजिकल फीचर्स, फ्यू फिजिकल फीचर्स, कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे. प्लीज स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू विल टेक योर कॉपी एंड पेन सो दैट यू कैन नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम हियर. तुम लोग पेन एंड कॉपी लेके ये जो डिफरेंट जो टोपोग्राफिकल फीचर्स के बारे में जो ये सारे 5 जो क्वेश्चंस है इसमें अवेलेबल है, इसके बारे में जानेंगे. तो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा अगर तुम लोग कॉपी में इसे नोट डाउन करोगे. तो मेन पॉइंट में जाने से पहले तुम लोग को कुछ समझना पड़ेगा. यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रेड कलर का लाइन्स है, ओके, दिस रेड कलर वर्टिकल लाइन्स एंड हियर ऑल्सो रेड कलर वर्टिकल लाइन्स, एंड
by joining this line when they are intersecting with each other they form this kind of small boxes. ये जो small boxes है, ये जो सारे small box जब intersect कर रहा है ये vertical and horizontal line, तब ये जो small box form हो रहा है, these are called grid. हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं. These are called grid. So grid रेफरेंस क्या है? ये जो ग्रिड रेफरेंस बार बार बोल रहे हैं, तो ये ग्रिड रेफरेंस है क्या? ग्रिड रेफरेंस का मतलब होता है वी आर ट्राइंग टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी फीचर्स. हम लोग कोई भी फीचर्स हो जो टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर है उसका लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो लोकेशन जानेंगे हम लोग यहाँ से. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, दिस विल इंडिकेट आवर लैटिट्यूड और north values. ठीक है, and these vertical lines will indicate east values और longitude. ठीक है, तो ये जो vertical lines है ये longitude का वैल्यू दिखाता है और ईस्टिंग वैल्यूज दिखाता है. ठीक है, on the other hand ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल्स लाइंस है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइंस है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखा रहा है? ये नॉर्थ, देखो ये क्या दिखा रहा है? ये लॉन्गिट्यूडिनल लैटिट्यूड को दिखा रहा है. ठीक है, लैटिट्यूड को दिखा रहा है. बट when we will go to calculate longitudinal value, when we will go to calculate or we will go to find out the grid reference value of north value and east value, हम लोग क्या ईस्ट वैल्यू कैसे देखेंगे? ईस्ट वैल्यू को हम लोग कैसे देखेंगे? ईस्ट वैल्यू जब हम लोग को फाइंड आउट करना है तब हम लोग यहाँ पर देखो जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है, ये जो सारे हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ गिवन है इसको फॉलो करेंगे. ठीक है, बिकॉज तुम लोग देखे हो अगर ये हम लोग का आर्थ है, अगर जो मेरिडियंस है, मेरिडियंस ऐसे करके स्प्रेड है, तो मेरिडियंस अगर ये 0 डिग्री मेरिडियन है, सपोज 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है. सो ये जो वैल्यू है मेरिडियंस का, जो लॉन्गिट्यूड्स का, ये हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, और दोनों साइड में ही, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होता है. एंड ऑन द अदर हैंड जो लैटिट्यूडिनल वैल्यूज़ है, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली है लेकिन इसका वैल्यूज कैसे राइज और इंक्रीज और डिक्रीज होता है? वर्टिकली, राइट? इफ दिस इज इक्वेटर, इफ दिस इज 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, अगर ऊपर देखें सपोज दिस इज 20 डिग्री, ऐसे करके ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है. सो वर्टिकली इंक्रीज होता है लैटिट्यूड का वैल्यू एंड लॉन्गिट्यूड का वैल्यू हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होता है टुवर्ड्स ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर. ओके, सो इसीलिए इसका पैटर्न ऐसा है. तो हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज़ देख रहे हैं टुवर्ड्स द अपर हैंड साइड एंड टुवर्ड्स द लोअर हैंड साइड, ये दोनों ही वैल्यू सेम होगा. ठीक है, सपोज ये जो लाइन है, इफ दिस इज अ लॉन्गिट्यूड, तो बोथ द वैल्यू इज सेम. ठीक है, ये सब दोनों का ही वैल्यू सेम है. तो अगर जब हम लोग ऊपर का फीचर्स देखेंगे तब हम लोग ऊपर का जो नियर बाई जो नंबर्स और जो वैल्यूज़ है उसको फॉलो करेंगे. अगर हम लोग ईस्टर्न वैल्यू देख रहे हैं, और जब नीचे की तरफ देखेंगे और मिडिल की तरफ देखेंगे तो हम लोग नीचे का वैल्यू फॉलो कर सकते हैं. इट विल बी ईजी फॉर अस और इट विल बी इट ईजी. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी से हो जाता है, फास्ट. ठीक है, और एक बात है, और ये जो नॉर्थिंग वैल्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ का वैल्यूज़ है. ठीक है ऊपर की तरह इंक्रीज हो रहा है. जैसे इक्वेटर्स अगर 0 हो, अब अगर हम लोग तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सो when we'll go, if I will see that values are increasing towards the upper side or towards the pole, north pole. So towards the upper hand side the values are increasing. Likewise on topo map you can see values are increasing towards upper hand side. Okay, and at longitude values or eastern values are increasing towards your right hand side. ऐसे करके तुम लोग इसको समझने की कोशिश करोगे. अब देखो ग्रिड रेफरेंस को कैसे हम लोग जानेंगे. Let's see the first question. नेम रिलीफ फीचर, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम रिलीफ फीचर इन ग्रिड स्क्वायर 9782. देखो यहाँ पर 4 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ है. इट हैज़ रिटन हियर 4 डिजिट नंबर. द फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 सेगमेंट. 2 पार्ट में से पहले डिवाइड करो. सो इफ आई विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट, द फर्स्ट पार्ट विल बी 97 and the second part will be 82. So 97 is the value of easting and 82 will be the value of northing. All time
all time in grid reference the first two digit will be easting value and the second two digits will be नॉर्थिंग वैल्यू। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखोगे जब तुम लोग खुद ग्रिड रेफरेंस कैलकुलेट करोगे, तब भी तुम लोग ईस्टिंग वैल्यू के फर्स्ट में लिखोगे, देन यू विल राइट द नॉर्थिंग वैल्यूज। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ईस्टिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हम लोग नॉर्थिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो ईस्टिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बोली थी, तुम लोग हॉरिजॉन्टली देखोगे, सो लेफ्ट हैंड बॉटम सेक्शन और अपर सेक्शन, ये दोनों में से एक सेक्शन देखेंगे। तो पहले चलो देखते हैं 97 82, लेट्स सी, आई एम जूमिंग द मैप वेयर इट इज 97 इज हियर। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो 97 यहाँ पर है, बट 82 अब तक देखो यहाँ पर 82 यहाँ पर है। पहले तुम लोग क्या करोगे, मार्क करोगे। देखो ऊपर से भी हम लोग देख सकते हैं, ये 97 है एंड दिस इज 82। तो सो हियर इट इज डिस्कसिंग अबाउट दिस ग्रिड। और भी जूम कर रही हूँ, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और भी ज़्यादा जूम करने से और भी क्लियर होगा। देखो ऐसे करके जूम करते हैं, देन यू कैन सी बोथ द सेक्शन। ओके, सो दिस इज 97 एंड दिस वैल्यू इज, दिस लाइन इज 82, इट इज कमिंग हियर। सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स, ये बॉक्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं 97 एंड 82। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वी आर लुकिंग हियर दैट कंटूर्स आर पासिंग लाइक कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल के द्वारा जैसे कंटूर यहाँ से पास हो रहा है एंड मिडिल में क्या है, इन द मिडिल ऑफ दिस कंटूर देयर इज अ स्पॉट हाइट, एक डॉट है यहाँ पर, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पॉट हाइट। जैसे डॉट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉट हाइट। ये जो सारे चीज़ तुम लोग को कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा, इसीलिए बोली हूँ कि कॉपी लेके बैठो। ऑल ऑफ यू प्लीज सिट विथ योर कॉपी, प्लीज टेक दिस क्लास विथ योर कॉपी। ये जो मिडिल का जो ऐसे पॉइंट है इसे हम लोग स्पॉट हाइट कहते हैं। ठीक है, इफ दिस इज अ डॉट, इफ दिस इज दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल, दिस विल इंडिकेट कॉनिकल हील। ठीक है, तो पहले हील के बात करेंगे। पहले देखो ये जो कंटूर है, दिस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे करके मिडिल में ऐसे, ऑल द कंटूर्स आर लाइक दिस सर्कल एंड ऑल दीज आर सेंटर्ड विथ अ मिडिल पार्ट। जो सेंटर में एक कंटूर होगा, सेंटर में एक पॉइंट होगा, उसको ही बेस करके सब अलग कंटूर स्प्रेड है, इसे कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। एंड द कंटूर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट मीन्स दिस इज अ हील। जब कंटूर एक दूसरे के बहुत पास होगा, ये क्या डिनोट करता है, दिस विल इंडिकेट दिस इज अ हील। बट व्हेन इन द मिडिल ऑफ द हील देयर इज अ स्पॉट हाइट, देन इट विल इंडिकेट दैट दिस विल बी डोम शेप हील। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जब मिडिल में ऐसे करके एक स्पॉट हाइट है, इट विल इंडिकेट डोम shaped heel. In few book, I think in few book or any few solution book, you can see that it has written here conical heel, but according to my opinion it is not conical heel. अगर मिडिल में ऐसे ही अगर concentric circle हो और मिडिल में ऐसा अगर triangle हो, then you can write this is a conical heel. But if it is a spot height in the middle, then you have to write this is a dome shape heel. Dome shape heel ऐसा होता है। ठीक है, ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ डोम शेप हील ऐसा है, अनकॉनिकल हील ऐसा होता है। तो कॉनिकल हील अगर हो तो इसका जो समिच है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, क्रेस्ट बहुत शार्प होता है, लेकिन देखो डोम शेप हील का जो समिच ज़्यादा शार्प नहीं है, यही डिफरेंस है। सो वी कैन सी दैट, वी कैन से एक्चुअली दैट the first feature that has given here 97 82, it is a dome shape hill. Okay, it may be vary, answer may be vary according to different book. मैं पहले से ही बोलूँ आंसर अलग हो सकता है, but you know surely that this is a hill. ये hill है, but which type of hill? Dome shape hill. Next question, find out the name of the settlement in grid square 95 76. 95 76. I'm again zooming 95. Okay, this is 95 and 76. So here it is talking about this part. Here also you can see black color river. This is a non-perennial river. ये जो सारे black color का ऐसा river जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो ब्लैक कलर का तुम लोग लाइन देखोगे, ऑल दिस आर नॉन पेरिनियल रिवर, बट इफ इट इज इन स्काई ब्लू कलर देन इट विल बी पेरिनियल रिवर. You have to find out this difference.
तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये ड्रेनेज पैटर्न क्या है, कैसे समझेंगे। अब देखो यहाँ पर मिडिल में वी कैन सी अ ट्रायंगल, हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल देख रहे हैं जिसे हम लोग कॉनिकल हील कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंटूर पैटर्न है ये कंसेंट्रिक नहीं है। अगर कंटूर पैटर्न कंसेंट्रिक नहीं है देन इट विल नॉट बी कॉनिकल हील। ठीक है, यहाँ पर देखो कंटूर पैटर्न इज लुक लाइक इलांगेटेड, दे आर वेरी स्ट्रेट, they are elongated, this kind of shape we can see here. So मैं यहाँ पर रिलीफ फीचर कॉनिकल हील है या डोम शेप हील है क्या है मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। वी हैव टू डिस्कस अबाउट ड्रेनेज पैटर्न। सो ड्रेनेज पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसे समझेंगे ड्रेनेज पैटर्न क्या है। इन योर सिलेबस देयर आर 4 काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स आर मेंशन्ड, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, टेराइल्स ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एंड ज़ैपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न। सो ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ग्रिड में क्या है कैसे समझेंगे। इफ़ इट इज़ एनी हिल, अगर ये कोई हिल है, अगर देखो अगर ये डोम शेप हिल है और कॉनिकल हिल है, डोम शेप हिल में क्या होगा, मिडिल में ऐसा स्पॉट हाइट होगा, एंड कॉनिकल हिल में कैसा होगा, ऐसा मिडिल में ट्रायंगल होगा। तो इफ़ इट इज़ डोम शेप हिल और इट इज़ कॉनिकल हिल, द ड्रेनेज पैटर्न विल बी, यू कैन सी दैट रिवर विल फ्लो लाइक दिस। देखो अगर मैं बोल रही हूँ सपोज दिस इज अ डोम शेप हिल और दिस इज अ कॉनिकल हिल, सो हाउ रिवर विल फ्लो, रिवर विल गो आउटवर्ड साइड, राइट। रिवर कैन नॉट स्टे हियर बिकॉज रिवर ऑल टाइम फॉलो द स्लोप ऑफ द टोपोग्राफी, सो रिवर विल फ्लो लाइक दिस, रिवर ऐसे करके फ्लो करेगा। सो रिवर इज गोइंग टुवर्ड्स द आउटवर्ड साइड, व्हेन रिवर इज गोइंग टुवर्ड्स द आउटवर्ड साइड द पैटर्न विल बी रेडियल। Okay, radial drainage pattern. So when river is moving towards the outward side then it will be called radial drainage pattern, and we can see radial drainage pattern in 2 cases, either the topography will be dome shape hill or it will be conical hill। अगर conical hill हो, अगर dome shape hill हो, तभी हम लोग radial pattern देख सकते हैं। और conical hill और dome shape hill कैसे समझेंगे, within contour में अगर हम लोग क्या देखेंगे, center point में if it is a triangle or if it is a spot height, इससे हम लोग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट टाइम गो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। sorry student, I have missed one question, question number 2. So let's see what is question number 2. Find out the name of the settlement grid square 9576. 9576. So at first you have to find out where it is 95. 95 is here, 76 is here. So this is talking about this part. At first you have to find out where is 95. After 95 we'll go towards the upward section. This is 76, between 95 and 76. So it will be this settlement. The name of the settlement you can see it is written here, Antoli settlement. So कैसे मैं इसको देख रही हूँ, देखो पहले तुम लोग क्या देखोगे, settlement is between 95 and 96. Take the previous value. अगर सेटलमेंट ईस्ट अगर हम लोग ईस्टिंग वैल्यू से देखें 95 एंड 96 के मिडिल में है, सो यू विल टेक द प्रीवियस वैल्यू बिकॉज इट इज़ नॉट क्रॉसिंग 96, इट इज़ क्रॉसिंग 95, सो इट विल बी 95. Okay, and if it is 76 and 77, it is between 76 and 77, it is not crossing 77, it is crossing 76, so we will take 76. So अगर दोनों के बीच में है जो प्रीवियस होगा उसको ही हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सेटलमेंट का नाम क्या होगा, आंतोली सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन ग्रिड स्क्वायर 9573। 9573 में देखो पहले 95 को देखेंगे, उसके बाद 73। 95, if it is 95 and this is 73, so it will go like this grid. Why I am going to up towards 74, because 73 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तब ये पार्ट में 73 कंप्लीट हो रहा है, देन 74 स्टार्ट हो रहा है, 74 इज कंप्लीटेड हियर, देन 75 इज स्टार्टेड। ओके, सो दैट्स आई एम गोइंग टू द अपवर्ड सेक्शन ऑल्सो, आई एम टेकिंग ऑल दिस ग्रिड, द फुल ग्रिड आई एम टेकिंग। सो ये जो फुल ग्रिड मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ये फुल ग्रिड, तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या देख रहे हैं, पर रिटन हैज कर जो क्लियरली रिटन है, इट इज ओपन स्क्रैब। ओपन स्क्रैब ये वेजिटेशन का पैटर्न और टाइप्स है, ठीक है, वेजिटेशन का टाइप होता है, पैटर्न नहीं होता है, टाइप्स होता है। सो द types of this vegetation we can see here, this is a
ओपन स्क्रैप वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑल टाइम कैसा होगा, उसका नेम वहाँ पर मेंशनड ही रहेगा। तुम लोग सिर्फ क्या करोगे, ग्रिड स्क्वायर को पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर देखोगे वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ रिलीफ फीचर फाइंड इन दिस ग्रिड 9976 99. Let's see 99. This I'm zooming again, then it will be clear. 99, this is 99 and this is 76. So between 99 and 96, so this grid, it will be this grid. So how is this kind of this relief feature? ये रिलीफ फीचर कैसे हम लोग कैसे समझेंगे? यू कैन सी हियर रिवर इज पासिंग लाइक दिस इज अ नॉन पेरिनियल रिवर एंड along this river this kind of second bracket kind, this kind of bracket type symbol you can see. When this type of symbol you can see, this kind of topography is called badland. Badland topography, you have to note down all this on your copy. Badland topography. ओके, सो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बैडलैंड टोपोग्राफी कहेंगे। ओके, यू कैन सी बैडलैंड टोपोग्राफी, टोपोग्राफिकल मैप में तुम लोग कहाँ पर देखोगे का समटाइम हम लोग मेन पेरिनियल रिवर के चार पास भी देख सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग नॉन पेरिनियल रिवर के पास ही देखते हैं। पेरिनियल रिवर के पास भी हम लोग ऐसे बैडलैंड टोपोग्राफी देख सकते हैं। ठीक है, सो कैसे इसको समझेंगे, if you will found a river, you will see this kind of river will passing non-perennial river or perennial, and along the both side of this river you can see this kind of bracket like feature. So this will be called badland topography. Understood? Now I think all of your doubt is clear. If it is not clear, you can go to the comment section and ask this. Now this is the main part. You will ask to find out the grid reference. Here you will be given the name of the settlement or name of the relief feature, and you have to find out the grid reference, 4 figure. The first is Sangala settlement. Sangala settlement, where you will find at first Sangala settlement, where it is I can see here this is Sangla settlement. So you have to find out the grid reference. Very easy. At first you will find the easting value, then you will try to follow the northing value. Easting value, Sangla settlement, so it is between 92 and 93. Which one we will take? 92. Okay, and now northing value, it is between 74 and 75. So the previous one you will take, it will be 74. Understood? So Sangla settlement, its grid reference is 90 to 74. I think your doubt is clearing now. Next question, a temple near Jubol settlement. At first you have to find out where Jubol settlement is located. Here Jubol settlement, I think you can see this is Jubol settlement has written, and it is a temple. ओके, देर इज़ अ टेम्पल. सो जुवोल सेटलमेंट के पास जो सेटलमेंट है, उस टेम्पल है, उसका ग्रिड रेफरेंस को फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन यू विल राइट ईस्टिंग. इफ़ यू विल नॉट राइट दिस ऑन योर एग्जाम पेपर. अभी तुम लोग प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिख सकते हो. डोंट राइट इन योर एग्जाम लाइक दिस. तुम लोग के समझने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ. तो ईस्टिंग वैल्यू किसको देखेंगे? देखो ये सारे ईस्टिंग वैल्यूज हैं. सो जुबोल सेटलमेंट के पास जो ये जो टेम्पल है, इट इज लोकेटेड बिटवीन 92 93. सो वी विल टेक द प्रीवियस वैल्यू, सो इट विल बी 92, एंड नॉर्थिंग वैल्यू 83 82. सो विच वन विल टेक? 82, बिकॉज इट इज क्रॉसिंग 82. वेरी इजी. सो द 4 figure grid reference of temple near Jubol settlement is 90 to 82. Okay, let's see the next question. Triangulated height 217. 217 में देखो एक height लिखा 217, not it will be 217, it will be I think 271. I think I'm trying to find out. Yes, 217, not student. This one 217 has written here. You can see 217. So at first again, easting, northing. Easting value between 93 94, then it will be 93. Northing 74 75, so it will be 74. Understood? Next, see the next one. BM 225.3. BM means benchmark. What is the meaning of BM? BM means benchmark. अब बेंचमार्क क्या है, इसका काम क्या है, इसे बाद में डिटेल में एनालाइज करेंगे. बेंचमार्क का मीनिंग होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेंचमार्क मीन्स इट इज एलिवेशन और हाइट
Okay, so what is benchmark we will discuss after completing the topographical maps classes. Then we will discuss about the short terms, the meaning of these short terms and their importance. So at first you have to find out benchmark. Benchmark 2 to 5.3. So here I think it is written 2 to 5.3. मैं इसको zoom कर रही हूँ, फिर हम लोग देखेंगे. 2 to 5.3, I think it is the benchmark 2 to 5.3. so now try to locate this. This is between 92 and 100, so we will take 99 and 100. We will write 99, and it is also between 74 and 75, so we will take 74. This is the 4-figure grid reference. And the last question is that a dry well near Sangla settlement. Actually this is not well, this is a tank, dry tank actually it will be. You can correct this, it will be tank. So tank, देखो यहाँ पर एक tank है. Dry tank क्यों कहा जा रहा है? It is patch is like this black color and it is filled with black dot. If for this reason it is non-perennial. If it will be perennial, then it will be like this sky blue color patch and it will be filled with sky blue color. Okay, there will not be any dot, especially black dot. So it will be perennial, but it is not perennial because it is dry, so it is filled up with black dots. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तो इसको पहले हम लोग लोकेट करेंगे. वी हैव ऑलरेडी लोकेटेड दिस. नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू. Sangla settlements, nearby pond is nearby tank is here it is. So the easting value between 92 93, so it will be 92. Between 74 75 it will be 74. I hope all of your doubt I think has cleared little bit. If it is not cleared still now, if you have any question, any problem, you can ask me on the comment section. Okay, and next day we will start 6-figure grid reference. So student, if this video is helpful for you, please like this video, share this video, and please subscribe our channel. And if you cannot understand anything still now, you can comment your valuable question. I will try to answer this. Still then, please stay safe. Bye students.